चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कार्यक्रम में, जहां किसान निधि सम्मान के तहत सीएम సార్ నేను ఒక ఎస్సీ ఒంటరి మహిళ సార్. నాకు పక్కన తాండాని ఉంది సార్. ఆ దాంట్లో 170 మంది గిరిజన మహిళలు ఉన్నారు సార్. మా వాళ్ళకి నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం నేను ఎట్లా చేశానో వాళ్ళని అట్లే నేర్పించి వాళ్ళని ప్రకృతి వ్యవసాయం నేర్పించే దిశలో తీసుకుపోయినాను సార్. सर मैं तो एक आदिवासी महिला हूँ सर. मैं अकेली महिला हूँ. तो मेरे बगल वाले गांव में 170 लोग आदिवासी महिलाएं हैं. उनको समूह के माध्यम से मैं किस प्रकार से मैं प्रशिक्षण लेके इनको प्राकृतिक व्यवसाय करती हूँ, उसी प्रकार उन सभी लोगों को भी प्रकृति व्यवसाय किस प्रकार से करना है मैं उनको शिक्षण देती हूँ सर. वेणुरब्बा जी, मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा आपका ये सारा काम, और मुझे विश्वास है कि देश के किसानों के लिए भी इस प्रकार से आत्मविश्वास पैदा करने वाले आपका अनुभव है. जब इंसान ठान लेता है तो वो क्या कर सकता है, इसका आपने जीता जागता उदाहरण पेश किया है. और प्राकृतिक खेती से हमारी आदिवासी माताएं बहनें महिला किसानों को जोड़ने का प्रयास भी ये बहुत ही सराहनीय है. मैं इस प्रयास के लिए आपको और सभी महिला किसानों को आदरपूर्वक नमन करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. धन्यवाद. अब मैं मेघालय के रिबोहाई जिले के श्री रविस्टर खरमुनपुर को आमंत्रित करूंगा, जो कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के जैविक उत्पादन हब के रूप में विकसित करने की योजना के लाभार्थी हैं. इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र उत्पादन से लेकर विपणन तक की संपूर्ण मूल श्रृंखला के रूप में विकसित किया गया है. श्री रविस्टर जी. रविस्टर जी नमस्ते. नमस्ते सर. हाँ बताइए. Good morning, Honorable Prime Minister Ji, from the land of Meghalaya. My name is Ravistar Harumnoy. I live in a village Umtung in Ribohai district of Meghalaya. I'm 36 years old. I have 7 members in my family. I'm the CEO of Eastern Ribohai Organic Farmer Producer Company. Our company is formed in 2017 under Mission Organic Value Chain Development for Northeastern region. We have 500 farmers and we grow our ginger and turmeric organically, and all our produce are organically certified. रविस्टर जी, मुझे बताया गया कि आप ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ ही अपने उत्पाद को प्रोसेस भी करते हैं, वैल्यू एडिशन भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं. अगर थोड़ा उसके विषय में भी बताएं तो शायद मैं समझता हूं कि आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर भी हैं, किसान भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो ऐसे कई नौजवान आजकल कृषि में आ रहे हैं, उनके लिए शायद आपकी बात बहुत प्रेरक हो जाएगी. Sir, we have done processing. We collect all the produce from the farmers. We take it to the FPC, where we have a processing unit. We process it, we pack it, and we label it like this. And then we sell these products to retail chains and companies which are tied up with the FPCs. And when we sell to them, we get better price rather than selling to the local mandis. These companies we have tied up. Some of the companies that we have sold before is to Big Basket, Vivanta Foods in Delhi, EcoCrop, Crop Connect, and other companies we are tied up to the south of India too. So we are eager to do export also from our company. So since there is a huge demand of organic products from Meghalaya in the export market. जरा आपका प्रोडक्ट दिखाइए. आप थोड़ा दिखा रहे थे, क्या क्या है बैग आपका? We have ginger powder, sliced dried, and Lakadong turmeric, one of the famous turmeric in the world with highest curcumin. So we have bay leaf and all the cinnamon, all the spices that are grown in Meghalaya. रविस्टर जी, आपकी एफपीओ किसानों के लिए आदर्श और प्रेरणा है.
आपने साबित कर दिया है कि किसान जब व्यापार से सीधे जुड़ता है तो उसको कितना लाभ होता है। आपको सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में कैसे मदद मिली, इसमें कैसे प्रगति हुई आपको, और कोई सहायता मिल रही है क्या? Yes, sir. We got assistance under Mission Organic Value Chain Development for registration of our FPC, organic certification and production. We also got subsidy for establishing custom hiring center, collection center, and processing unit. We got all the on-farm and off-farm products for the farmers. Then we have got trainings to farmers on capacity building and even to the board members. We are very much thankful to you for this. And we also would like to thank the government of Meghalaya for supporting us and also for giving us 2% interest subvention in KCC loan and also mobilization fund, 5,000 per farmer for full farmer industry. देवेश्वर जी, हम सभी आपके प्रति बहुत आभारी हैं कि आपने साबित कर दिया कि किसान मिलकर बिजनेस का कितना सफल मॉडल विकसित कर सकते हैं। इस समय देश भर में 10,000 एफपीओस बनाने का काम चल रहा है और किसान भी अब इसमें बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। कोशिश यह है कि छोटे किसानों के ये संगठन किसान की आय बढ़ाने में और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को बल देने में, उद्योगों को निमंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और आपने तो दिखा भी दिया, और मैं मानता हूं जब मेघालय के दूर सुदूर हिमालय की गोद में से इस प्रकार से आप इतने बढ़िया प्रोडक्ट दिखाते हैं तो अब तो शायद खरीदने वाले भी आपकी तरफ देखेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। श्री पैट्रिक को आमंत्रित करूंगा। कार निकोबार और उस द्वीप समूह के ऐसा पहला देश का क्षेत्र है जब 14,500 हेक्टेयर को लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है, जिससे यहाँ के किसान अपना उत्पाद जैविक रूप में बेच सकें। श्री पैट्रिक जी, अब मैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के श्री खुर्शीद अहमद रेशी को आमंत्रित करूंगा, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। श्री खुर्शीद अहमद जी। खुर्शीद जी नमस्ते। तमाम जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार सर। खुर्शीद जी, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद का त्योहार आपके जीवन में खुशियां बढ़ाए, मेरी यही कामना है। और मुझे बताया गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने फिर ये काम चुना। कई नौजवान आज आपकी बातें सुन करके उनका भी खेती की तरफ रुझान बढ़ेगा। तो आपकी पढ़ाई और खेती कैसे आपने मेलजोल किया है, जरा बताइए। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में टैंगपुरा के गांव से ताल्लुक रखता हूं सर। सर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है इंग्लिश में सर। मेरे वालिद है, मेरी वालिदा है, मेरी बीवी है, मेरे 3 बच्चे हैं और छोटा भाई है, वो बीएससी नर्सिंग कर रहा है अभी सिक्किम में सर। मेरे पास 26 कनाल की ज़मीन है सर। 14 कनाल की जो ज़मीन है उनमें ऑर्गेनिक सब्जी बनाता हूँ सर, और जो 12 कनाल जो ज़मीन है वो मैं धान की फसल बनाता हूँ सर। मैं ऑर्गेनिक सब्जी इसलिए बना रहा हूँ सर क्योंकि पहले हम ट्रेडिशनल सब्जियां बनाते थे, उसमें कुछ आता नहीं था सर। जब हमने नौकरी की तलाश की तो नौकरी हासिल नहीं हुई, तो मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर का है सर, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है, वहाँ से मैंने एजुकेट किया है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों न अपनी ज़मीन की तरफ जाऊँ, तो मैं अपनी तरफ ज़मीन की तरफ गया, तो मैंने ऑर्गेनिक सब्जी बनाई सर। मैं एक्सोटिक सब्जी ज़्यादातर बनाता हूँ सर। उसमें है कैप्सिकम, ब्रिंजल है,
कुकुम्बर है सर, ग्रीन चिलीज है सर, उसमें मैं इन ये सब्जियां उगाता हूं सर। अच्छा खुर्शीद जी, ये बताइए कि आपको मार्केटिंग और दूसरी चीजों में सरकार की कुछ मदद मिल रही है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से मैंने गांव में एक एफपीओ बनाया है 30 फार्मरों की सर। हम ये ऑर्गेनिक सब्जियां एक जमा इकट्ठे करके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक रेफ्रिजरेटर वैन मुहैया किया है, फैसिलिटेट किया है मुझे। वो सब्जियां लाल मंडी में लाते हैं, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक ऑर्गेनिक मंडी बनाई है, तो ये सब्जी जो है ऑर्गेनिक वो वहाँ बेचते हैं सर। खुर्शीद जी, आपका साहस और समर्पण ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर इस तरफ लौटना ये एक जज्बा रखता है जो आपने दिखाया है। वरना आदमी उलझन में रहता है, भाई अब क्या करूँ, दुनिया क्या कहेगी, फिर लोग कहेंगे इतना क्यों पढ़ा लिखा और यही करना था तो बचपन से ही कर लेता। वो सब परवाह किए बिना आपने अपने जीवन का रास्ता चुना, सचमुच में बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप जैसे शिक्षित किसान जब ऑर्गेनाइज ढंग से काम करेंगे और करते हैं तो कैसे परिणाम निकलते हैं ये आज हम देख रहे हैं। आप अपनी कोशिश जारी रखें। आपको, आपकी टीम और आपके गांव के लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद खुर्शीद जी। धन्यवाद जी। अब मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के श्री बाबा साहेब नरारे को आमंत्रित करूंगा, जो भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक किसान क्रेडिट कार्ड के संतर्गत अभियान फरवरी गत वर्ष में प्रारंभ किया था। उसमें 2 करोड़ 10 लाख किसान नए जोड़े गए हैं, उनमें से एक किसान हैं श्री नरारे जी। बड़ा साहब नमस्कार। राम राम सर। नमस्कार। राम राम। बाला साहब बोलिए सर। आप तो अनुभवी किसान हैं। जी सर। लंबा तजुर्बा है। इन दिनों आप कौन सी फसलें उगाते हैं और खेती के अलावा आप और भी कुछ काम करते होंगे? जी सर, मेरे पास 5 एकड़ खेती है अभी, और उसमें सोयाबीन, ज्वार और चना ये उगाता हूँ। इस साल तो उत्पन्न बहुत बड़ा निकला है। और इसके अलावा, खेती के अलावा, और मैं संगीत सिखाता हूँ। दूसरे एक दो दिन बाहर जाकर संगीत सिखाता हूँ सर, और बाकी दिन तो हम खेती ही कर देते हैं। बाला साहब जी, छोटे किसानों को बैंक से सस्ती दर पर आसान ऋण मिले, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बहुत बढ़ाया गया है। सर, आपकी खेती पर इससे कोई फर्क पड़ा है क्या, और आपके अगल बगल के किसानों के जीवन में भी इसका कोई लाभ हुआ है क्या? जी सर, इसका अनुभव ये है कि पिछले साल तक तो मेरे पास कोई पैसा इतना ज़्यादा नहीं आता था। मैं आजू बाजू से हमारे सगी संबंधियों से पैसा लेता था, मतलब 10-20 हज़ार लेता था। लेकिन पिछले साल जुलाई में हमारे यहाँ के महाराष्ट्र बैंक चिंचोलेरा वाड़ी के कुछ अधिकारी लोग हमारे गांव में आ गए थे, और उसमें केसीसी के संदर्भ में मेला लगाया था, और उसी वक्त मुझे भी वहाँ बुलाया गया था। तो उन अधिकारियों ने बहुत सारे फायदे बताए थे। तो उसी वक्त मैंने उनसे ऋण लिया था, 1,58,000 रुपये ऋण लिया था, और उन्होंने 5 साल तक सीमित ये कर्जा दिया था। अभी 1 साल भी नहीं हो गया, लेकिन हमें 1-2 दिन में उन लोगों ने वो कर्जा दिया था। 2 दिन में ही, सिर्फ सर्टिफिकेट भी हमने नहीं लिए थे। अब उन लोगों ने अपने आप ही 7/12 उतारा, खेतीबाड़ी के जो भी कागज़ होते हैं वो उन्होंने लिए थे, और हमारे 2 दिन में लिए थे। उसके बाद हमने उन पैसों से ज़मीन लेवल कर दिया था, और कोई बीज, कोई मजदूरी, और उसके साथ साथ हमने बकरियां भी पाली थी उस पैसे से। इस साल फ़ायदा ऐसा हो गया, पहले जैसे कभी नहीं हुआ था।
जमीन लेवल से, और गोबर खत भी लिया था हमने उनसे। तो पिछले साल 20 कट्टा सोयाबीन हो गया था, इस साल 40 कट्टा सोयाबीन हो गया सर, इसलिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है। और उसके साथ साथ हम वहाँ प्याज भी लगाते हैं, थोड़ा मिर्ची भी लगाते हैं, ये सब कुछ तो केसीसी की वजह से हो गया है सर। बड़ा साहब जी, आप बढ़िया हिंदी बोल लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। काळजी करा। बरं आहेत हेलो मग? सर। हाँ नमस्कार सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी गांव के धन्यवाद। किसानों को भी हमारा प्रणाम कह दीजिएगा। थैंक यू सर। यस सर, यस यस। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से देश को संबोधित करने का अनुरोध करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सभी किसान साथियों से ये चर्चा अपने आप में एक नई उम्मीद जगाती है, नया विश्वास पैदा करती है। आज जैसा अभी हमारे मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर बता रहे थे, आज भगवान बसवेश्वर जयंती है, परशुराम जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया का भी पावन पर्व है। और मेरी तरफ से देशवासियों को ईद की भी मुबारक। कोरोना के इस समय में समस्त देशवासियों का हौसला बढ़े, इस महामारी को परास्त करने का संकल्प और दृढ़ हो, इस कामना के साथ आप सब किसान भाइयों से जो मेरी बातचीत हुई है, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और देश भर के मेरे किसान भाई और बहनों, आज बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में हम ये संवाद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी देश के किसानों हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है। आप कृषि में नए नए तरीके आजमा रहे हैं। आपके प्रयासों को पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त और मदद करने वाली है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। कृषि के नए चक्र की शुरुआत का समय है और आज ही करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसका लाभ करीब करीब 10 करोड़ किसानों को होगा। बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे,
वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मतलब कि 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, यही सरकार का निरंतर प्रयास है। भाई और बहनों, तेजी से सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाने का यह काम उपज की सरकारी खरीद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि अब किसान जो उपज मंडी में बेच रहा है, उसको अब अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता। किसान के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है। मुझे संतोष है कि पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर की इस सुविधा से जुड़े हैं।